بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ آج ہم اپنا نیکسٹ لیسن پڑھتے ہیں، اور جو نیکسٹ آیات ہیں ان کو ایک بار آپ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے رولز تجوید کے کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ آج تھرڈ ڈے ہے حفظ کا، اور ہم نے 2 days میں 10 آیات الحمدللہ سیکھی ہیں، اور اب ہم نیکسٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو اسٹوڈنٹس پچھلے لیسن سنا چکے ہیں ان سے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور اسپیشلی اس ریفرنس سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا لیسن سنا رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ ہر لفظ کو بول رہے ہوں۔ جیسے جب اردو میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے وقت ہر حرف کو واضح کر کے بول رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر زا ہے تو ہم زا ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر را ہے یا ظاہر ہے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ہم انہیں واضح کر کے بولتے ہیں تاکہ دوسرے کو سمجھ آئے۔ لیکن عربی میں معاملہ صرف اردو جیسا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ عربی میں کوئی لفظ کوئی حرف اگر مس ہو جائے، اور اگر وہ مس ہوا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا معنی تک بدل سکتا ہے، اور یہ اتنا سینسیٹیو میٹر ہے کہ اس کی وجہ سے معنی بدلنے کی وجہ سے آپ کا ظاہر ہے جو ایک ایسا اجر آپ نے کمانا تھا اس کو پڑھ کے، وہ اجر بھی ایک تو آپ حاصل نہیں کر پائے، دوسرا کہ اس کا معنی بدل گیا، اور تیسرا یہ کہ آپ اگر اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو اس میں خوبصورتی بھی پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز کی تاکید کی کہ ایسے ادا کیا جائے خوبصورت انداز میں جیسے کہ اس کا ادا کرنے کا حق ہے۔ اس لیے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور جو رولز آپ کو سکھائے گئے ہیں، تجوید کے بنیادی رولز سکھائے گئے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے پختہ نہیں ہے تو آپ ان ریکارڈنگز کے اوپر واپس جائیں، ان کو دوبارہ سے گو تھرو کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ جو ریکارڈنگ شیئر کی جاتی ہے اس کو سنیں، ساتھ میں اپنے سامنے مصحف رکھیں یعنی قرآن، اور سنتے ہوئے دیکھیں کہ کون کون سے حرف کو قاری کیسے ادا کر رہا ہے، کون سا حرف ہے جو مجھ سے مس ہو رہا ہے کسی لفظ میں اور میں اسے باقاعدہ ادا نہیں کر رہی جبکہ وہ لکھنے میں موجود ہے۔ اگر وہ لکھنے میں موجود ہے تو پڑھنے میں بھی موجود ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھیں، اور حرکات کا خاص خیال رکھیں کہ حرکات سے معنی بدل جاتا ہے۔ اگر آپ عربک گرامر کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ عربی میں تو تمام کے تمام معاملات جو ہوتے ہیں وہ چل ہی حرکات کے ساتھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کا یعنی پورے کا پورا سینٹینس سٹرکچر بدل جاتا ہے اگر آپ حرکات چینج کرتے ہیں۔ آپ یعنی پہلے اگر آپ ایک جملے میں کسی کام کرنے والا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے تو اگر آپ حرکت بدل دیتے ہیں اس کے اوپر زیر سے اس کو پیش سے اس کو زیر یا زبر بنا دیتے ہیں بولتے وقت، تو اس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو کام کرنے والا تھا آپ نے اس طرح سے اس کو بیان کیا جیسے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یعنی معنی ہی بدل گیا۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کیونکہ کچھ آپ کی جو الحمدللہ کوششیں ہیں حفظ کرنے کے معاملے میں، اور ایک ایفرٹ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ہمیشہ قبول ہی ہوتی ہے، لیکن اس ایفرٹ میں اگلا جو سٹیپ ہے، ایک بار آپ سے وہ غلطی ہوئی، اس کی اصلاح ہوئی، تو پھر دوسری بار وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے ایفرٹ، درست سمت میں یہ ایفرٹ ہے کہ آپ کو ایک بار اپنی غلطی کا پتہ چل گیا کہ یہاں میں غلط ہوتی ہوں پڑھتے وقت، تو پھر دوبارہ وہ مسٹیک بہت کم ہونی چاہیے آپ کی، اور وہ تب ہونی چاہیے کہ آپ نے پوری کوشش کی اس کو ختم کرنے کی، اور پھر بھی کہیں ہو گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کی ایفرٹ پوری تھی، تو اس پہ ہے دوہرا اجر۔ اس پہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی اٹک کے پڑتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پارٹ پر کوشش نہیں ہے اور پھر آپ کی اٹکن جاری ہے اور آپ اس کو غلط
पढ़ रहे हैं और फिर दुरुस्तगी हो रही है, फिर दोबारा वही गलतियां होती जा रही हैं, तो ये एफर्ट नहीं है, ये वो अटकन नहीं है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेफर किया कि अटकन पर दोहरा अजर है। क्योंकि मुशक्कत है ना, एक कोशिश है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ नीयत देखी जाती है कि कौन कोशिश कर रहा है, किसने दरमियान में अपना वक्त लगाया है इसको इम्प्रूव करने पर। वो जानता है कि उसकी ये गलती है और अब वो इसके इस्लाह की तरफ कोशिश कर रहा है। तो इंशाल्लाह इस चीज़ का अपने ख्याल रखना कि दोबारा वो गलतियां ना दोहराई जाएं। इंशाल्लाह मैं इसको पढ़ती हूँ और आपसे कुछ बयान कर देती हूँ इसके बारे में, जो सॉरी, जो तजवीद के रूल्स हैं वो आयत पर हम अप्लाई करेंगे, और आप इंशाल्लाह उसके बाद अपना लेसन सुनाएंगे यहाँ मौजूद टीचर को इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير। जी, यहाँ पर जो रूल्स हैं हम उनको देख लेते हैं। फा के बाद आप देखें कि एक अलिफ मौजूद है, और इस अलिफ पर आप देखें कि कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ये मुसहफ जो है उनकी प्रिंट का भी डिफरेंस होता है, इस चीज़ को भी जहन में रखें कि बाज़ मुसहफ जो हैं उनका प्रिंटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। उसकी वजह से आपको बाज़ औक़ात मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देखने में मिलती हैं। अलिफ के ऊपर ये गोल जो बना होता है, एक सर्कल सा, उसका मतलब है कि ये अलिफ नहीं बोला जाएगा, ये स्किप होगा। और यहाँ पर ये जो फा के बाद अलिफ है, ये भी इसको शो कर रहा है कि आपने इसको स्किप करते हुए फा के फौरन बाद जो आइन है उसके साथ इसको जोड़ देना है, फा को। फा, फा। और फा की आवाज को लंबा नहीं खींचेंगे, फा, और आइन की आवाज को प्रोमिनेंट करेंगे। फिर आगे है ता। बाज़ वक़्त आइन के बाद जब ता बोला जाता है तो उसको फा बना दिया जाता है, तो ये इस गलती से बचना है। और ये गलती तब भी हो जाती है जबकि आप किसी ऐसे हर्फ को पढ़ रहे हों जिसके दाएं बाएं यानी आगे पीछे कोई ऐसे हरूफ हों जो पुर पढ़े जाते हैं। अगर वो हरूफ पुर पढ़े जाने वाले हैं तो फिर उनको पुर करते करते यानी उनको मोटा करते करते बाज़ औक़ात बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ को भी मोटा कर दिया जाता है। तो ये इस गलती से बचना है। इसी गलती की वजह से, यानी यहाँ मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि आपने इसको तो नहीं बोलना, क्योंकि इसके बाद रॉ भी आ रहा है। तैरवा, तैरवा। और एक आसान तरीका इसका ये है कि आप जो अ, आपने हरूफुल हिजा पढ़े थे, हरूफुल हिजा में यानी अलिफ बा के ऊपर जब हरकत को हम अलग अलग पढ़ रहे होते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेसन्स में, तो उसको जहन में लाएं कि जब ता को मैंने अकेला हरकत के साथ पढ़ा था तो वो कैसा था। ता, ता फथा, ता। तो उसको आप बिल्कुल, अगर वो दो इस तरह के हरूफ के दरमियान में है जहां पर आगे पीछे मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं, तो फिर आप हरूफ तहज्जी के ऊपर जाएं और सोचें कि अगर ये तौ के ऊपर फतहा होता तो मैं इसे कैसे पढ़ती, ता के ऊपर है तो मैं ता को कैसे पढ़ती, अगर रॉ है तो रॉ को अलग कैसे पढ़ती। अलग अलग करके पहले पढ़ें, उसके बाद उसको जोड़ के पढ़ें, और कोशिश करें कि बिल्कुल वही हर्फ बोला जाए जो हरूफ तहज्जी में पहले बोला गया था। फा, तैरवा, तैरवा। इसको तौरा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। फा, तैरवा, ता अलग है और रो अलग है। इस तरह से आप अगर हरूफ तहज्जी को एक एक इंडिविजुअली पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हरकत लंबी भी नहीं खींची जाएंगी, और इस तरह से जो मखारिज है उनमें भी फर्क नहीं आएगा। फा, तवाफू। फू में देखें आगे फा के बाद वाव है, इस वाव को अदा किया जाता है, यानी किस तरह अदा किया जाता है, फा की आवाज को लंबा खींच के, फू। अगर यहाँ पर ये वाव ना बोला जाए तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, फा, तवाफू, फा, तवाफू। फू को देखें हमें लंबा नहीं खींच रही। तो आप जब हिफ्स सुनाएंगे तो आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे कि आपने इस वाव को मिस नहीं होने देना, क्योंकि ये वाव से पहले जब भी पेश हो तो ये हरूफे मद्दा होते हैं, और ये गलती बहुत से स्टूडेंट्स कर रहे हैं सुनाते हुए अपने लेसन्स को। तो इंशाल्लाह इसका खास ख्याल रखें। फ़अतरफ़ू,
बिज़म्बिहिम, इसमें देखें कि बा को भी और जाल को भी नरमी से अदा करेंगे। बी जम, बी और बी को भी लंबा नहीं करेंगे और जा को भी लंबा नहीं करेंगे, लेकिन दाल को हम आगे जो नून मौजूद है उसमें देखें कि नून के ऊपर एक छोटी सी मीम मौजूद है। और हमने ये रूल देखा था कि जब भी नून साकिन के बाद अगर बा आ रहा हो तो उससे उस नून साकिन के ऊपर उसको बदल के मीम कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात आपको कई मकामात पर ऐसा भी लिखा हुआ, ऐसे भी मकामात आएंगे जहां पर मीम ही होगा साकिन और उसके बाद बा लिखा होता है, उस पे भी यही रूल अप्लाई होगा। लेकिन अगर नून के ऊपर मीम है तो इसका मतलब है कि अब आप नून स्किप करेंगे और मीम बोलेंगे, तो यूं ये हो जाएगा बी बिहिम, और इसको भी हम लंबा खींचते हैं। यहाँ पर आप देखें कि बा आ रहा है और उससे पहले मीम है, तो यहाँ भी हम यानी इसको स्ट्रेच करेंगे। और ये इक़लाब के रूल्स हैं, जो इख्फा के रूल्स हैं, हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह गो थ्रू किया हुआ है। इसका पढ़ने में भी इसकी एप्लीकेशन इंशाल्लाह आप लोगों ने करनी है। बिज़म्बिहिम, और उसके बाद नेक्स्ट है फसुहक़न। आप देखें यहाँ पर फसुहक़न में सीन को हम स्वाद नहीं बनने देते। सीन में एक सीटी की आवाज आती है, इसको नरमी से नहीं अदा किया जाता बल्कि सीटी से अदा किया जाता है। और उसके बाद आप देखें कि जब तनवीन आ जाए, तो मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे ही आपको किसी लफ्ज में तनवीन या नून सुकून नजर आ जाता है तो उसके बाद क्या आप रूल्स फौरन देखेंगे कि क्या उसके बाद हरूफ हलक मौजूद है या नहीं। अगर हरूफुल हल्क मौजूद हैं तो फिर तो नून की आवाज पूरी की पूरी आप अदा करेंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि हरूफुल हल्क मौजूद नहीं है, आपको यहाँ पर गुन्ना करना है, इदगाम। लेकिन अब ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर इदगाम में भी दो तरह के जो हमने उसूल पढ़े थे कि एक पे गुन्ना होगा और एक पे नहीं होगा, क्या ये वो तो नहीं है? यानी मुशद्दद लाम और रॉ पर हम गुन्ना को स्किप कर देते हैं। यानी जब हम उसकी आवाज नाक में लेके जाने की जो फसुहक़न होना चाहिए था, नून नाक में जाता तनवीन का, तो वो हम ड्रॉप कर देते हैं। और यहाँ पर भी यही बिल्कुल ऐसे ही है कि तनवीन में अब यहाँ नून नहीं बोला जाएगा, ये ड्रॉप होगा क्योंकि अब आगे लाम मुशद्दद है। हमने देखा था कि लाम मुशद्दद और रॉ मुशद्दद आ जाए, ये नोट जरूर किया करें ताकि आपको अप्लाई करते हुए ये आपके बार 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 रिपीट होते जा रहे हैं। मैं पहले भी लेसन्स में जो आ रहा होता है तो रिपीट कर रही होती हूँ। जब आप नोट करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें बार बार रिमाइंडर मिलता जाएगा, तो आपको ये रूल्स बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएंगे, फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे आपके, और आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर लाम और रॉ जब आ जाए मुशद्दद और ये नून साकिन या तनवीन के बाद हो तो हम गुन्ना नहीं करते। तो यूं यूं पढ़ा जाएगा ये फसुह कौली अस्हाब। यहाँ देखें फसुह कौल कौल, ऑफ की आवाज को फौरन लाम के साथ अटैच किया जा रहा है, हालांकि यहाँ तनवीन मौजूद है फिर भी हम नून की आवाज मिस कर रहे हैं। फसुह कौली अस्हाब सईर। अब यहाँ देखें कि ली के बाद अलिफ है, और ये अलिफ क्यों हमजा है? क्योंकि इसके ऊपर हरकत है। तो जब भी किसी अलिफ के ऊपर हरकत होती है तो वो हमजा हो जाता है, उसको अलिफ नहीं रहता। तो इसको आ की आवाज से जल्दी से अदा कर देते हैं, ली अस। और सौद की आवाज में ये सौद पुर होता है और सीटी की आवाज के साथ अदा होता है। इसके बाद है हा की आवाज, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि खड़ा जबर मौजूद है। और अगेन यहाँ मैं कहती हूँ कि मुसहफ में बाज़ औक़ात लिखने में यहाँ अलिफ मद भी हो सकता है, तो वो आपने देखना है कि खड़ा ज़बर या अलिफ मद दोनों ही अगर लिखे गए हैं तो इन दोनों सूरतों में ही आपने इसको एक अलिफ के बराबर लंबा खींचना है। इस अलिफ को आपने स्किप नहीं करना, यानी इसकी आवाज़ को लंबा खींचेंगे, इस हा की आवाज़ को। ली अस्हाबिस सईर। अब देखें अस्हाबिस में देखें बा के बाद जो सीन है ये शुद्धा के साथ है, इसलिए हम बा की आवाज को फौरन सीन के साथ मिला देंगे। बिस्सईर, बिस्सईर, और सीन को लंबा नहीं खींचेंगे। और ये जो आखिर में रॉ है इसको हम पुर नहीं करेंगे,
क्योंकि इससे पहले आप देख सकते हैं या मौजूद है। बिस्सईर, इसको मैं एक बार फिर आयत को पढ़ देती हूँ। फअतरफू बिज़ंबिहिम फसुहक़्क़न लिअस्हाबिस सईर। इसके बाद हम अगली आयत की तरफ चलते हैं। इसमें देखें कि नून मुशद्दद मौजूद है, और हमने देखा था अल ख़ैशूम में कि जब भी आवाज़ नाक में यानी जब नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद हो तो वो अल ख़ैशूम मखरज होता है, यानी नाक में आवाज़ को छुपाया जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। इन्नल्लज़ीना, इसमें देखें कि इन के बाद जो लाम है इसको हम फौरन नून के साथ अटैच कर देंगे, और इसके दरमियान में जो अलिफ है वो स्किप होगा। इन्नल्लज़ीना, और लाम को पुर नहीं करेंगे। और वीना में देखें कि दाल या से पहले दाल के नीचे सॉरी कसरा है, तो ये या को लंबा खींचा जाएगा, यानी दाल को लंबा खींचा जाएगा कि या भी अदा हो, या ड्रॉप ना हो। इन्नल्लज़ीना, वीना, अब यहाँ देखें दाल को मैं इतना लंबा खींच रही हूँ कि ये या अदा हो रहा है। वी, अगर मैं इसको कहती इन्नल्लज़ीना, यहाँ पर भी बल्कि अदा हो ही गया है। इससे भी छोटा बाज़ औक़ात कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स जब सुनाते हैं इन्नल्लज़ीना को इतना छोटा कर देते हैं कि या को ड्रॉप ही कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ये या बोली जाएगी। और ये कैसे पता चलेगा? आपने जाल की आवाज को लंबा कर देना है एक अलिफ के बराबर, तो या बोलने में आ जाएगी। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, अब यहाँ देखें यख में खौ पुर पढ़ा जाने वाला हर्फ है और इसको पुर पढ़ा जाएगा। फिर शौना में बाज लोग शीन को गोल कर देते हैं, शौना, शौना गलत हो जाएगा। इसमें ये हरूफ लीन है और इसको वाव वाजे करके अदा किया जाता है। यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैब। आप यहाँ देखें कि जो ऊपर मैंने आपको पिछली आयत नंबर 11 में बिज़म्बिहिम के बारे में बताया था कि नून साकिन के ऊपर एक मीम है, और मैंने आपको ये साथ ही बताया था कि बाज़ औक़ात कुरान में आपको ऐसे भी मकाम मिलेंगे जहाँ पर कि इस बा से पहले मीम साकिन ही होगा, नून ऐड नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर अब ये मकाम आ गया है रब्बहुम बिल गैब। यहाँ देखें कि मीम बा से पहले है और ये साकिन हालत में भी है, तो ये वही रूल है और यहाँ पर हम उसको अप्लाई करेंगे। रब्बहुम बिल गैबि लहुम, इसमें जो मीम है इसको स्ट्रेच किया जाता है, और क्योंकि इसके बाद बा है, और इसके बाद देखें कि बा के बाद आपने जो अलिफ है इसको स्किप करना है, और बा के फौरन साथ ही आपने लाम को अटैच कर देना है, बिल। और गॉइन जो है इसको भी पुर पढ़ा जाता है, गॉइबी, गौ, गौ, बिल गॉइबी लहुम। अब लहुम के बाद देखें कि फिर से मीम आ रहा है और ये मुशद्दद है, तो हम यहाँ पर अदगाम के उसूलों को जहन में रखें तो ये मीम जो है यानी पिछले मीम के साथ मिक्स हो रहा है, और इसको हम स्ट्रेच करके अदा करते हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। अब यहाँ पर ये जो तीनों अल्फाज इकट्ठे आ रहे हैं इसको भी हम देख लेते हैं। मग़फ़िरतुन में देखें कि तनवीन है और उसके बाद आपने वाव के साथ इसको मिला देना है। मग़फ़िरतुन मग़, अच्छा एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि खौ और गाइन की आवाज़ मखरज जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बाज़ औक़ात पढ़ते हुए वो एक ही तरह से अदा हो रहा होता है, तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि खौ की तरफ ना जाए बल्कि गाइन की तरफ ही रहे। मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर में देखें कि रा पुर है क्योंकि इसके ऊपर फतहा है, और जो ता है इसको वाव के साथ मिला के गुन्ना किया जाएगा, और ये यहाँ पर अदगाम होगा। फिर अज में देखें जीम साकिन है और ये कलकला, हरूफ कलकला है, और इसको हिला के अदा किया जाएगा। अज, अज, आवाज पलट के आएगी, और उसके बाद है रॉ, इस पे भी आप देखें कि
ये पुर अदा होगा क्योंकि इसके ऊपर जो हरकत हैं वो दोमा या फतहा हो तो ये पुर होता है, और यहाँ ये कंडीशन पूरी हो रही है। और इसके बाद आप देखें कि हरूफ हलक़ी मौजूद नहीं तनवीन के, इसलिए यहाँ पर गुन्ना होगा। वह अजरुन कबीर, लेकिन यहाँ पर जो गुन्ना होगा उसकी टाइप है यानी मुखफ़्फ़म। इसको हम मुखफ़्फ़म नहीं करेंगे बल्कि मुरक्कक करेंगे। और ये मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आपने ये टर्म्स आपको सीखने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है। एक कहते हैं पुर और एक कहते हैं बारीक। आपने यहाँ पर बारीक यानी जो बारीक किए जाने वाला गुन्ना है वो करना है। अजरों कबीर, एक है अजरों कबीर, एक है आप पुर करके उसको खूब पुर करके पढ़ते हैं गुन्ना को, और एक है कि आप उसको बारीक अदा करते हैं गुन्ना को। तो यहाँ बारीक गुन्ना हो रहा है। वह अजरों कबीर। और यहाँ का को भी अगेन ये का बहुत से लोग अलग बोल जाते हैं। आपने यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करनी है कि जो का है ये आप हर जब अल हिजा हरूफ अल हिजा पढ़ते हैं तो काफ जबर का फतहा का बोलते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही अदा होना चाहिए। यानी जब आप इसको लफ्ज में भी रख रहे हैं तो वहाँ बुनियाद वैसे की वैसे ही आप एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। अगर इल्ला ये कि बाद वाले कुछ कि ऐसे हरूफ होते हैं जिसके ऊपर जैसे अलिफ है, अलिफ के ऊपर कुछ आगे पीछे के मोटे हरूफ का असर आ जाता है। तो अगर ऐसे हरूफ हैं तो वो डिफरेंस आ जाता है, लेकिन जो हरूफ ऐसे नहीं है तो उसमें आप नॉर्मली इसको सिंपल वे में पढ़ेंगे। का क्या इसको का पढ़ेंगे। और फिर कबीर में देखें लास्ट पर आपको रॉ साकिन करना है, इसलिए आपने इसको बारीक अदा करना है। ये पुर नहीं होगा क्योंकि इससे पहले या है। तो ये कुछ रूल्स आपने ज़हन में रखने, मैं इसको दोबारा से अब पढ़ती हूँ। इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 13, और हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें आप देखें कि जो यानी इसमें कुछ ऐसे रूल स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलते, वही हैं जो हम पहले पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ रिपीट करती जाऊंगी ताकि वो आपके बार बार सुनने में आए और आपके लिए वो बिल्कुल आसान हो जाए। व असिर्रू में देखें और वा के बाद साउंड है, और उसके बाद सीन के साथ आपने रॉ को जोड़ के पढ़ना है, सिर सिर। और यहाँ पर रॉ के ऊपर दोमा है तो इसको ऊपर पढ़ा जाएगा, सिर्रू सिर्रू। अच्छा, यहाँ पर जो वाव है इसकी आवाज को मिस नहीं करना, जैसे मैं आपको पहले बताती रही हूँ कि वाव से पहले दोमा हो तो इसमें आप लंबा खींचते हैं, सिर्रू व असिर्रू कौलकुम कौलकुम। इसमें भी कौ हर्फ लीन है, और आपने बाकी भी हरकत को लंबा नहीं करना। अविजहरू अविजहरू, इसमें देखें आ की आवाज को लंबा किए बगैर पढ़ना है। वाव की आवाज के बाद फौरन जीम है। वेज, ये जीम कलकला है, इसको हिलाएंगे और हा की आवाज को वाजे करेंगे जो जीम के बाद है। और रू अगेन यहाँ पर पुर होगा और लंबा भी होगा क्योंकि हरूफ मद है। अविजहरू बिह। अब यहाँ देखें कि अ, यानी बिह में हम यहाँ वक्फ कर रहे हैं, तो जब वक्फ किया जाता है तो आखिरी जो हरकत होती है उसे ड्रॉप कर दिया जाता है। उसके अगला पार्ट हम देखते हैं, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अब यहाँ पर देखें अलीमुम में सॉरी इससे पहले है इन्नहु। इसमें आप देखें कि नून मुशद्दद जब आ जाए तो हम इसको गुन्ना करेंगे, ये अलखैशूम इसका मखरज होगा। और इसके बाद हम दोबारा वही रूल देखते हैं जो पिछली आयत में भी दोनों में रिपीट हुआ है कि बा से पहले मीम साकिन। यहाँ पर भी तनवीन की जगह पर नून, ये ऐसा होना चाहिए था अलीमुन क्योंकि तनवीन है, लेकिन ये क्यों ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब इसके ऊपर मीम आ गया है। और ये मीम क्यों आया है क्योंकि तनवीन के बाद बा है, तो इसलिए ये अब मीम से बदल जाएगा, मीम साकिन हो जाएगा। हम इसको अलीमुम बिज़ातिस सुदूर पढ़ेंगे। और
اس میں باقی جو ذا ذال کے بعد الف ہے، اس کو لمبا کھینچا جائے گا کیونکہ یہ حروف مدہ ہیں، اور صوت کو پر ادا کریں گے، اور اس میں بھی سیدھی کی آواز بھی آنی چاہیے، اور را جو ہے اس کو درمیانہ ادا کریں گے، نہ بہت پر اور نہ ہی بالکل باریک۔ اس کے بعد ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اس میں آپ دیکھیں الا میں الف سے پہلے لام ہے، الا، اس کو لمبا کھینچا جائے گا۔ اس لام کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک سرکل بنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں بنا ہوا، اس کا مطلب ہے یہ الف ہے۔ لام کے بعد جو الف ہے اس میں دیکھیں الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ الف ہے، اور یہاں پر یہ حروف مدہ کی طرح بولا جائے گا الا۔ اور یعلم میں عین کی آواز کو واضح کیا جائے گا، من میں نون کے فوراً بعد دیکھا جائے گا کہ نون سکون کے بعد کیا کوئی حروف الحلق کے علاوہ بھی حروف موجود ہیں۔ یہاں پر حروف الحلق موجود ہے تو ہم اس کو پوری طرح نون کو واضح کر کے ادا کریں گے۔ من خلق، خوا کو پورا ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اس میں باقی وَهُوَ میں دیکھیں واو کے ساتھ لام کو اٹیچ کر کے پڑھا جائے گا، اور طا کی آواز کو پر کیا جائے گا لطیف۔ اس میں دیکھیں کہ طا کی آواز کو پر کرتے ہوئے لام کو پر نہ کیا جائے، لام باریک ہی ادا ہوگا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ، لطیف میں آپ دیکھیں کہ لطیف میں طا کی آواز کو کھینچ رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد یا سکون ہے، اور یہ بھی بولا جائے گا یا۔ اور اس کے بعد خوا کی آواز کو خبیر میں پر کریں گے، اور را لاسٹ پر پر نہیں ہوگی کیونکہ اس سے یہ ساکن ہو جائے گی اور اس سے پہلے یا ہے۔ میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ الا يعلم من خلق، من خلق، یہ ایسا پوائنٹ ہے جو سینسٹیو ہے، اس کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ اور ہماری جو نیکسٹ آج آج کا لیسن ہے، اس کی لاسٹ آیت ہے، وہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، اب یہاں دیکھیں کہ میں پڑھ رہی تھی اور آپ غور کریں کہ لکم الارض، لکم الارض میں دیکھیں کہ ارض ایک ایسا لفظ ہے جو کہ کچھ اس میں ٹیکنیکلٹی ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے۔ اس میں الف کے بعد را پر ہے، اور را کے بعد ضاد بھی پر ہے۔ یہاں تک تو یہ چیز ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کو پورا ادا کرنا ہے۔ را ساکن ہے، اس کو ہم اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے الف ہے، سوری الف کے اوپر فتحہ ہے، اس لیے ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ لیکن اب ضاد کے بعد فوراً ذال ہے، اور ہم نے اس کو ذا پڑھنا ہے، لیکن یہ ضاد کی وجہ سے آپ جلدی پڑھتے ہوئے اس کے اوپر بھی افیکٹ لا سکتے ہیں، اور یہ بھی پر ہو سکتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضلولن، یہ ضال بن سکتا ہے، سوری ضا بن سکتا ہے، یا ضاد بن سکتا ہے بولنے میں۔ تو اس مسٹیک سے آپ نے انشاءاللہ بچنا ہے۔ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، پھر آپ نے کس چیز کے اوپر جانا ہے؟ دوبارہ حروف الہجا کے اوپر جا کے سوچنا ہے کہ زال کیسے وہاں پڑھا جاتا ہے۔ جب میں زال فتحہ زا پڑھ رہی ہوں تو وہاں میں زا پڑھ رہی ہوں، تو مجھے یہاں بھی زا ہی پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی ایک ایک لیٹر کو درست طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں۔ لَكُمُ الْأَرْضَ أَرْضَ ذَلُولًا، أَرْضَ ذَلُولًا، اس کو پیچھے کی آیت سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اب یہاں پر ذَلُولًا سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر تنوین ہے لام کے اوپر ذَلُولًا کے لاسٹ پر، اس میں دیکھیں کہ فوراً بعد آپ کو حروف الحلق نہیں مل رہے، تو آپ یہاں غنہ کریں گے، یہ ہو جائے گا ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا۔ اگر ہم صرف ذَلُولًا فَامْشُوا میں دیکھیں تو یہاں پر آپ نے جو غنہ کرنا ہے وہ موٹا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ذَلُولًا یہ غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ کہیں گے
ذلولا فمشو, तो ये बारीक गुन्ना है जो कि यहाँ होगा, क्योंकि इसके बाद कोई रीजन नहीं है आपको यहाँ पे मोटा गुन्ना करने की. ذلولا فامشوا في مناकिबिहा. फमशू में देखें कि बिल्कुल सिंपल वही रूल्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अलिफ यहाँ पर ड्रॉप होगा फा के बाद, और शीन का जो वाव है वो शीन के साथ वाव भी बोला जाएगा और शीन की आवाज को स्ट्रेच किया जाएगा. फिर फी को भी स्ट्रेच किया जाएगा कि फी, छोटा फी करके आप इसको नहीं बोल सकते, जैसे कि नॉर्मली बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते हुए ऐसे ही गलती कर जाते हैं कि फी की आवाज में सिर्फ फी बोल जाते हैं जल्दी में, वो गलती नहीं करनी. फमशू फी मनाकिबिहा, इसमें भी आप देख सकते हैं कि दो हरूफे मद्दा हैं, एक ना के बाद अलिफ और एक हा के बाद अलिफ, नून के बाद अलिफ और एक हा के बाद अलिफ, दोनों में ही अलिफ से पहले फतहा आ रहा है तो ये लंबे होंगे. इसे आप जल्दी में मनाकिबिहा नहीं पढ़ सकते, मनाकिबिहा गलत होगा क्योंकि आपने नून के बाद वाला अलिफ छोड़ दिया है. मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िह. अब यहाँ देखें मिर रिस्की में देखें कि नून सुकून के बाद रॉ है, और रॉ हमने पहले भी ये रूल देखा था कि जब भी नून सुकून के बाद रॉ में शद्दत आ जाए तो हम इसको उन्ना के बगैर पढ़ते हैं, मिर रिस्की. और फिर आगे देखें कि हमने जहाँ पर वक्फ किया है वहां पर हम यानी जो आखिरी हरकत है वो ड्रॉप कर रहे हैं हा की. इसके बाद है व इलैहिन नुशूर, और यहाँ पर भी नून की जो आवाज है इसको हम उन्ना करेंगे, मगर ये भी पुर उन्ना नहीं होगा और ये अलखैशूम से अदा होगा. और शीन की आवाज के को भी लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद वाह है, और वाह को भी पुर किए बगैर दरमियाना अदा करेंगे, यानी ना ज्यादा पुर और ना ज्यादा बिल्कुल बारीक. नूशूर, नूशूर. जी मैं इसको दोबारा पढ़ देती हूँ. हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फम्शू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िह व इलैहिन नुशूर. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नेक्स्ट लेसन है उसकी 5 आयत हमने आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली हैं. आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. आपके साथ इंशाल्लाह मैं लेसन की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग इसको सुन के अपनी गलतियां एक बार फिर से देख लें कि कहाँ आपसे गलती हो सकती है पढ़ते हुए, और रूल्स की तरफ वापस जाके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब इंशाल्लाह आप लोगों का सुनने का मरहला है और इंशाल्लाह आपसे रुकैया सुनेंगी. बारह गिला फीक रुकैया स्टार्ट लिखिए. वैशा की मैम. जी सुनाना शुरू करें. बरीरा आमिर, वन बाय वन सुनाते जाएं. पिछली आयत हैं आपकी 6 to 4. ये टीचर आपकी करेक्शन कर देंगी इंशाल्लाह. बरीरा आमिर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. बारक फीक बरीरा. सब लोग स्टार्ट करें मगर सलाम लिए बगैर. एक बार सलाम लेने से सबका हो जाएगा. हमारे पास वक्त काफी कम है. मैम आप जो फिफ्थ सुनाते आयत जाएं. से. 6 से 4 आप सुना दें और ग्रुप को दोबारा ओपन किया जाएगा ताकि आप शुरू से लेके आप 10 तक इंशाल्लाह सुना सकें अगला लेसन भी. अभी फिलहाल आप बिस्मिल्लाह. 6 वाला सुनाएंगे सेकंड लेसन, ठीक है? सॉरी 6 to 10 सुनाएंगे सेकंड लेसन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम जहन्नम व बि'सल मसीर. इज़ा उल्कू फ़ीहा समि'ू लहा शहीकन व हिय तफूर. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوجا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
12 قلعہ ہم لوگ لیسن کو سناتے ہوئے بھی اور پریکٹس کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ خیال رکھیں گے کہ جو حرکات ہیں ان کو نہ تو ہم لوگ کھینچیں گے نہ لمبا کر کے پڑھیں گے، اور جو جیسے آپ نے یہاں پہ را پڑھا، را جو ہے موٹا پڑھا جائے گا اسٹارٹ میں، فرسٹ آیت جو تھی کفروا بربہم، را کے اوپر زبر ہے تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا۔ اور اس طرح سے آگے جیسے ہم نے پڑھا تھا کا دو تمیزو، لمبا کر رہے تھے آپ اس کو، تو حرکات کو ہم لمبا نہیں کریں گے، اور دوسرا آئین اور جو حمزہ ہے ان کو ہم مکس نہیں کریں گے، ان میں ڈفرنس ہوگا۔ ایک جیسے ہم نے پڑھا یاتیکم، آئین تھوڑا سا پروناؤنس ہوا تھا، تو اس بات کا بھی ہم لوگوں نے خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ باقی آپ کا ٹھیک تھا الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے عرفا۔ عرفا آپ سنا دیں، اور اگر ان کیس یہ میٹنگ اینڈ ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ گروپ اوپن ہوگا اور پھر آپ کو دوبارہ موقع ملے گا کہ آپ کا سارا سنائیں۔ 12 قلعہ فی رکیہ، آپ عرفا کا بھی سنیں، عرفا کا بھی سنیں، جزاک اللہ خیر۔ للذين كفروا بربهم عذاب جهنم تھوڑا سا آپ اونچا پڑھیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل كل شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير